Umar saying he said that that is he was trying to convey कि आपको खतरा ये कि PSO और क्या कहते हैं गाड़ियां चली जाएंगी, हमारा प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा, तो आप चाहते हैं कि खुदकुशी मैं करूं। हाँ, तो मैं खुदकुशी आपकी बोलेरो के लिए नहीं करूंगा। ही मेंशन दिस वर्ड कि बोलेरो एक कम हो जाएगी, क्योंकि द फॉर्मर MLAs वर वेरी एडमेंट, स्पेशली सम फ्रॉम श्रीनगर। एक MLA तो ऑलमोस्ट एक प्लान बीच में ये भी बना था, और राणा साहब ने पूरा खुलासा नहीं किया, लेकिन व्हेन ही स्पोक टू द मीडिया, आपसे भी शायद बात हुई, हाँ, हुई। आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज इन गोवा, तो शाम को ही कॉल्ड मी, वी हैड अ कन्वर्सेशन फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। ऐसे ये यहाँ पे ब्रेक लगा दी, ये नहीं बोला, रहने दो, डजंट लुक गुड। बट वन ऑफ द प्लान्स दैट वाज इनिशियली मेड अप वाज that there would be a deputy chief minister or two deputy chief ministers from National Conference if the chief minister was from the BJP. Even this was discussed. Yes. They were ready for a chief minister, BJP chief minister. And a big ideological figure in the National Conference was ready to be the deputy chief minister. And in certain conversations, he did mention that if we had 20 or 21, this would probably be a mathematically viable, politically viable consideration. Of course, fraught with its disadvantages. Conference के who were in a favor of an alliance with the BJP. अच्छा, हाँ, senior leader. हाँ बिल्कुल, वर्किंग कमेटी में थे, सीनियर होंगे, and they expressed it. और वो एक्सप्रेशन ये था कि अगर हम नहीं करेंगे, PDP सरकार बनाएगी, हमारे वर्करों का क्या होगा, काम नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। And उमर साहब got up and he said that आपको बेसिकली जो खदशात है, प्रॉब्लम है कि आपकी बोलेरो चली जाएगी। I remember this word. This is So one meeting I'll tell you about. अच्छा, मीटिंग्स हुई बीजेपी के साथ, you confirm this? Yes, of course. हुई? Undoubtedly, they were via medias, and at that. And Umar wanted to become CM. I don't want to get into that, but नहीं, फिर CM कौन बनता अगर at one point the BJP was very keen on it. कि हमें CM चाहिए, हम CM बने। नहीं, that they want to ally with the National Conference. अच्छा। And they categorically said that we find a natural alliance with them, BJP के साथ, PDP के साथ हम we are not comfortable. हम नेचुरल लाई नहीं है। हम नेचुरल लाई नहीं, ये वर्ड यूज किया गया। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेचुरल लाई है। ये उसमें सजाद लोन साहब भी was via media for a point. He knows it that BJP was keen to go with them. और एक पॉइंट पे जो राणा साहब ने सारा खुलासा किया वो सही है, कुछ चीजों का खुलासा नहीं किया। And let's keep it as it is. Let that stay in the closets of history. मुझे एक मीटिंग याद है, जो आपने ये सवाल किया, मुझे एक मीटिंग याद है कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, उमर साहब got up, it was closed to media, किसी को nobody was allowed to have their phones, and he said that why should we हम तो खत्म हो जाएंगे, बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे। उस वक्त उन्होंने वेन किए थे pros and cons. He had met the powers that be in Delhi. There was a meeting that had happened. Farooq Saab was undergoing a kidney transplant in London. But then Umar Abdullah had decided that I only have 15 MLAs. Maybe if I had 20, I'll be such a weak partner in this government that it will consume me. And in certain conversations, he did mention that if we had 20 or 21, this would probably be a mathematically viable, politically viable consideration. Of course, fraught with its disadvantages. तो एक वर्किंग कमेटी मीटिंग उठे, उन्होंने कहा कि आप, और उसमें कुछ लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के who were in a favor of an alliance with the BJP. अच्छा, हाँ, सीनियर लीडर। हाँ बिल्कुल, वर्किंग कमेटी में थे, सीनियर होंगे, and they expressed it. और वो एक्सप्रेशन ये था कि अगर हम नहीं करेंगे, PDP सरकार बनाएगी, हमारे वर्करों का क्या होगा, काम नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। And उमर साहब got up and he said that आपको बेसिकली जो खदशात है, प्रॉब्लम है कि आपकी बोलेरो चली जाएगी। I remember this word. This is Umar saying. He said that he was trying to convey कि आपको खतरा ये कि PSO और क्या कहते हैं गाड़ियां चली जाएंगी, हमारा प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा, तो आप चाहते हैं कि खुदकुशी मैं करूं। तो मैं खुदकुशी आपकी बोलेरो के लिए नहीं करूंगा। He mentioned this word कि बोलेरो एक कम हो जाएगी, क्योंकि the former MLAs were very adamant, especially some from श्रीनगर। एक MLA तो ऑलमोस्ट एक प्लान बीच में ये भी बना था, और राणा साहब ने पूरा खुलासा नहीं किया, लेकिन when he spoke to the media, आपसे भी शायद बात हुई। I was traveling, I was in Goa. तो शाम को ही कॉल्ड मी, वी हैड अ कन्वर्सेशन फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। ऐसे ये यहाँ पे ब्रेक लगा दी, ये नहीं बोला, रहने दो, डजंट लुक गुड। बट वन ऑफ द प्लान्स दैट वाज इनिशियली मेड अप वाज that there would be a deputy chief minister or two deputy chief ministers from National Conference if the chief minister was from the BJP. Even this was discussed. Yes. They were ready for a chief minister, BJP chief minister. And a big ideological figure in the National Conference was ready to be the deputy chief minister. He was ready to be the Absolutely. deputy chief minister. Absolutely. And there was
a pre-celebration atmosphere in that house. Okay. And I was there one evening. Okay. और वहाँ पे You were part of those celebrations. नहीं, वहाँ मन्नतें रखी गई कि होना चाहिए. अच्छा. होना चाहिए. तो आइडियोलॉजिकल प्रिटेंस जो अब बहुत जो सबसे श्रिलेस्ट वॉइसेस हैं कि जी कभी नहीं, कतई नहीं, they were almost in for an alliance with BJP. For a deputy chief ministerial post. But Umar Abdullah, after a certain point of time, it's a reality, was very clear about the fact that he does not want to go with the BJP. He was clear about it. Yes, and BJP wanted to go with him. BJP wanted to go with him. Perhaps if Farooq Saab was here, and that's what BJP said in 2000. If he was here, if he was not indisposed, maybe something would have happened. So, आप ये कहने की कोशिश करें in a way कि आज भी अगर कहीं कोई अलायंस की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बीजेपी के साथ बनेगी, इट विल बी मोर बिकॉज ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंड लेस बिकॉज ऑफ उमर अब्दुल्ला. डू यू थिंक उमर इज इन मतलब अब एक अलग इंसान है वो इस वक्त उमर अब्दुल्ला कि इस वक्त तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं? देखिए तो लॉजिक है ना. देखिए एक तो उमर साहब हैज एज ऑन हिज साइड. जिसकी एज अपने साइड पे, व्हाई वुड ही कॉम्प्रोमाइज? There is no need to compromise. There is no. Second, Farooq Saab is a very pragmatic politician. ठीक. वो मंजे हुए सियासतदान हैं. उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज देने का नजरिया देखने का बहुत अलग है. ठीक. लेकिन मैं आपके उस सवाल पे फिर से आऊँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में रेबिलियन होगा. मुझे लगता है अगर 1-2 साल में एनसी ने बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रेबिलियन होगा. लेकिन इस चीज के लिए होगा कि आप बीजेपी के साथ अलाय क्यों नहीं कर रहे हो, हमारे काम नहीं हो रहे हैं. I still know a lot of former friends and former colleagues who I speak to. And who are saying हमें समझ नहीं आ रहा है why we aren't going with the BJP. And I will never name them. It doesn't look nice. But the votaries of an alliance with National Conference might not be more than the people who oppose this idea. But उतने कम भी नहीं है. उतने कम भी नहीं है. उतने जितना हमें लगता है ना कि कम है. जुनेद साहब मुझे ये भी बताइए कि एक वक्त था जिस वक्त ये लग रहा था कि अल्ताफ बुखारी जब when he was running जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, this was a time in valley, you could come and talk to people and they would tell you कि यार ये भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है. What happened? आपको भी ये लगता है कि वो जो इंजीनियर रशीद एक्सपेरिमेंट था that actually blew the cover off and उसके कारण जितना भी वो गणित कहीं बिठाया गया था वो सारा का सारा गणित जो है हिल गया? एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव इतना आलूदा हो गया, एक ऑल्टरनेटिव गाली बन गई मेन स्ट्रीम में, और हम सब उसके कोलैटरल बन गए. क्योंकि द वे यू प्रोजेक्टेड एन ऑल्टरनेटिव वाज इन अ वेरी शैबी, डिसडेनफुल एंड विलनस मैनर. ऑल्टरनेटिव मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज एक गाली बन गई. ठीक. एंड स्टेटस को, ट्रेडिशनलिज्म एक वर्च्यू बन गया. वर्च्यू बन गया. और जिन हालात में ये होते हैं बड़ी बदकिस्मती होती है, बिकॉज स्टेटस को इज नेवर अ वर्च्यू. राइट. स्पेशली इन प्लेसेस व्हिच have suffered so much. Change is always a must. But आलूदा हो गया. अपनी पार्टी बनी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनी. पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जब when they tried to form a government with the BJP, so that's still there. That's a footnote in history. जब वो फैक्स मशीन वगैरह टूट गई, वो फिल्म बनी. उसके बाद what happened at different circumstances कि the alternatives might not have been favored as much as they expected, but they got consumed. It's वो एक Greek mythology में there's this tale of somebody flying very close to the sun. Or you fly so close to the sun you get burnt. That is what happened with alternatives. People's Conference का हुआ, अपनी पार्टी का हुआ. लेकिन एक और चीज भी मैंने मतलब alternatives को लेकर ये मेरी खुद मैंने महसूस किया कि आप मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों को, खास तौर पे वादी के लोगों को इतना बेवकूफ समझ रहे थे कि आपको बैंक का नोटिस आता है, आप फलां पार्टी में चले जाइए, नोटिस विड्रा. आपको ईडी का समन आता है, फलां पार्टी में चले जाइए, समन बंद. आपको सीबीआई वाले बुला रहे हैं तो आप किसी फलां पार्टी में चले जाइए तो वो सिलसिला बंद. तो मतलब हाउ कुड यू मतलब. And that's what happened. People saw through it. And there was a complete one-sided shift towards the National Conference. National Conference left to its own strengths, मेरे हिसाब से they would have taken 30-35 seats. Okay. Not more than 30. Not more than 30. But it went to 42. 10 seats it got because of an abject hatred of people they were contested against. But now do you? अब क्या आप ये मानते हैं कि सैयद अल्ताफ बुखारी का जहां तक ताल्लुक है कि वो जो सैयद अल्ताफ बुखारी ने इनिशिएटिव लिया, दिल्ली गए, उस वक्त जब कोई एंगेजमेंट दिल्ली के साथ किसी लेवल पर नहीं हो रही थी,
अगर हो भी रही थी कहीं अंदर खाने पर्दों के पीछे हो रही थी, ये जो पर्दे के सामने वाली एंगेजमेंट हुई, आज के दिन क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि वो एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट के लिए थी, वो ऑल्टरनेटिव तैयार करने के लिए नहीं थी? देखिए, एक टाइम पे मैं इस सवाल का जवाब इस कंटेक्स्ट में देता हूँ कि पीडीपी को भी एक जगह सिंथेसाइज किया गया। पीडीपी के बनने के पीछे वी ऑल नो हु आर द प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड, बट इट वाज डन इन अ मैनर वेयर इट लुक लाइक दैट देयर इज एन alternative which has emerged to national conference. Yes. ये जो alternatives को एक impetus दिया गया, ये ऐसे दिया गया कि ये alternative का concept ही pollute हो गया, stigmatize हो गया, गाली बन गई नाम alternative, right. मुतबद्दिले गाली बन गई, और the result is in front of us. ठीक. Could it have been handled better? I think maybe. I think Kashmir is still ripe for change. Okay. Change within the national conference, change outside the national conference, change in a holistic sense. But this change will have to be organic to a certain extent. Maybe it can't be 100% organic in the present circumstances in a place as complex as Jammu and Kashmir. But organic base तो हो ना, बुनियाद खमीर तो organic हो. खमीर organic होना चाहिए. अब आप clone करोगे start से ही, तो वो you can't deliver that baby. बिल्कुल. अब आखिर में मैं तो आपसे जानना चाहूँगा कि अब ये जो सियासत से आपने दूरी इख्तियार कर ली है और बिल्कुल खामोश बैठे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं, और एक और चीज़ मैंने देखा ट्विटर पर कि आप में एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन भी, मजहबी तौर पर भी कुछ तब्दीलियाँ आपके अंदर रोनुमा हुई हैं. यंग हैंडसम डैशिंग यंग बॉय, यू वुड मीट हिम इन राजभवन और एनीवेयर वेयरएवर कहीं पे मुलाकात आपसे होती थी, तो वो एक मतलब यंग और मतलब अलग ही एक दुनिया से अब आप एक बिल्कुल अलग दुनिया में आए हैं. तो विल यू कंटिन्यू लाइक दिस? आर यू स्टिल थिंकिंग अबाउट वेयर टू गो नाउ? बिकॉज इज योर पॉलिटिकल जर्नी ओवर? आर यू गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी इन द टाइम्स टू कम एंड यू आर अभी आप उन अपने ऑल्टरनेटिव्स पर गंभीरता के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ सोच विचार कर रहे हैं? No, I would not say that my political journey is over. I am an accident in politics. My father was not an MLA. I left a life in the United States, came back here. I will continue to still look for a way to contribute to some sort of a public welfare. कि कहीं पे, you know, when we die, but you have to go to a political party. I haven't gotten into that mental territory of what to do. There are people who are contacting you, asking you that you can. I am observing things. आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, मैं आपको बड़ी पर्सनल, I'll tell you a personal realization. I went for Hajj last year, and मैंने वहाँ पे something happened to me, and you know, I closed my eyes and I said that यहाँ पे मैं ख्वाब शरीफ के सामने ये अहद करता हूँ और ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि या मुझसे सियासत छुड़वा दीजिए या वैसी सियासत जिंदगी भर करूँ कि मैं आखिरत में शर्मिंदा ना हूँ. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर फॉर द सेक ऑफ इट थोड़ी करनी है. आई वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मेयर ऑफ श्रीनगर, वन ऑफ द यंगेस्ट मेयर्स. मेरे पहले भी यंग थे, लेकिन वो यंग इस लिहाज से नहीं थे कि उनके वालिद साहब यंग थे, तो वो तो 16 साल पे भी बन सकते थे. You were someone outsider who made it. Outsider, became one of the youngest mayors, served for the longest time. I delivered on a lot of things that I wanted to deliver in Srinagar. फिर personal ambition के आगे भी एक दुनिया है. ठीक. Can you look at yourself in the mirror? And when your life ends or your career ends, if you can look at yourself in the mirror, ये कह सकते हैं कि I'm happy with what I did for my people. I would want that from my life. I would not want a pure personal ambition. And I think holistically, everybody, हम किसी भी political background से हो. But we will see you somewhere in a political party in the days to come. I would not comment on that. I wouldn't get into the territory of political parties. I am not. You're weighing your options. I'm not weighing. I'm observing. I am a spectator. I'm observing from the galleries. I have performed in 5 years in very trying circumstances. It's now entertaining to watch others perform in those circumstances. I am neutrally observing things, but with a desire in my heart that हमारे लोगों ने सफ़र बहुत किया है कि आगे सफ़र ना करें. बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने सुन लिया, ये थे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व मेयर जुनैद आजम अट्टू.
बहुत सारी बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर भी करी, कश्मीर की सियासत को लेकर भी करी, और सबसे खूबसूरत बात जो आखिर में कही कि आप जिंदगी में सियासत जैसी मर्जी वैसी करें, लेकिन वो लम्हात जब आप अकेले अपने आप के साथ बिल्कुल जिंदगी के उन अय्याम में जिन्हें हम कहते हैं कि ये वो अय्याम है जिन अय्याम में आप सुकून और इत्मीनान के साथ आप बैठना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप कम से कम आईने में अपनी शक्ल देखकर इस बात पर फख्र महसूस करें कि आपने अपने जिंदगी को अपने लोगों के लिए, अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर अपने लोगों के लिए वक्फ कर दिया। तो इसी बात पर इसको खत्म करते हैं, फिर किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे और ऐसी ही बातें आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।